तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है, आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग ऑल दिस कंटेंट्स ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम द पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड. Today we are going to discuss about the unit number 11, noise in the environment, माहौल में शोर. First of all, I am giving you some brief introduction about this chapter, that what is noise. Noise pollution. Noise is also a pollution which has become very deadly nowadays. This pollution is increases only and creates an unsafe environment. Noise pollution is when the level of noise increases more than the normal level. When the amount of noise exceeds, it becomes dangerous for living beings. Moreover, these unpleasant sounds cause several disturbances and create an imbalance in the environment. In other words, high volume noises are abnormal. As the world is advancing at a rapid rate, so is noise pollution. Technology has made things easier for people by creating appliances and devices for almost everything. You want to mix or grind something, it can be done with a mixer or blender. And you are feeling hot, simply turn on the AC or cooler. Do you want entertainment at home? You can watch television or play music. However, people don't realize this comfort comes with harmful effects too. All the mentioned appliances contribute to noise pollution. They disturb the natural rhythm of life and fall in the category of a pollution. As the world is turning to technology for their comfort, it is at the same time harming us. The industries, no matter how big or small, contribution to noise pollution. The equipment they use, like compressors, exhaust fans, generators, and more, produce a lot of noise. Similarly, the ever increasing use of automobiles is a major cause of this pollution. Not only automobiles but other transport vehicles like aeroplane, buses, bikes, trucks, and more are also a part of it. People honk unnecessarily in the traffic and listen to loud music on the way, which creates high level of noises. Furthermore, social events like marriages, parties, and religious functions in places like clubs, pubs, temples, halls, and more create a lot of nuisance in the residential area. In addition, the construction activities like mining, the building of flyover, bridges, and more also produce great noises. Though it may not be talked about much, noise pollution has a serious impact on the livings of human beings. Firstly, noise pollution causes a number of hearing problems. High level of noise damage the eardrums and sometimes even cause loss of hearing. Similarly, it reduces the air sensitivity to the sounds that the human body requires to regulate our rhythm of the body. Moreover, it also affects our psychological health. It may not be evident instantly, but in the long run, it changes our behavior. When your sleep gets disturbed or you constantly have headache because of too much noise, you tend to experience fatigue and even migraines. In short, we must make people aware of the impact of noise pollution. Likewise, we must encourage them to adopt ways that do not contribute to noise pollution. If everyone starts doing the same on an individual level, we will surely be able to reduce noise pollution to a great extent. So students, this was a brief introduction about the chapter. Now we move on to the translation. First paragraph. Noise pollution is defined as any form of noise that disrupts the normal functioning of life.
If left unchecked, it can have serious effects on the mind and body of humans. शोर की आलूदगी से मुराद शोर की ऐसी कोई भी शक्ल है जो मामूलाती ज़िंदगी में खलल डाल दे। अगर उसे रोका ना जाए तो ये इंसानों और जानवरों के जहन पर और जिस्म पर ख़तरनाक असरात मुरतब कर सकता है। Noise pollution is one of the biggest source of discomforts, stress and nuisance in Pakistan. In urban areas and big cities, noise pollution has reached to a dangerous level. For instance, a survey by the Punjab Environmental Protection Agency claims that the level of noise in Lahore has reached 91 decibel, whereas a maximum of 75 decibel is acceptable. This means that the mental and physical health of so many people is already at risk. शोर की आलूदगी पाकिस्तान में बेचैनी, तनाव और परेशानी के सबसे बड़े वजूहात में से एक है। शहरी इलाकों में और बड़े शहर में शोर की आलूदगी ख़तरनाक सतह तक पहुंच चुकी है। मिसाल के तौर पर पंजाब की माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की एजेंसी का सर्वे ये दावा करता है कि लाहौर में शोर की सतह 91 डेसिबल तक पहुंच गई है। बेटा डेसिबल वो मेजरमेंट टूल होता है या आप इसको कह सकते हैं कि एक ऐसा पॉइंट, जैसे कि हम थर्मामीटर में जब टेम्परेचर को मापते हैं तो सेंटीग्रेड उसमें डिग्री सेंटीग्रेड में मापते हैं, तो डेसिबल जो है आवाज़ को मापने का एक होता है पॉइंट, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 75 डेसिबल की शरह काबिल कबूल होती है। इसका मतलब है कि इतने ज़्यादा लोगों की जहनी और जिस्मानी सेहत पहले से ही ख़तरे में है। स्टूडेंट, देयर इज़ अ क्वेश्चन इन अ बॉक्स, व्हाट इज़ नॉर्मल फंक्शनिंग एंड हाउ इज़ इट डिस्टरप्टेड। नॉर्मल फंक्शनिंग क्या होती है और ये कैसे तबाह होती है। सो द आंसर इज़ नॉर्मल फंक्शनिंग मीन्स एवरीथिंग दैट इज़ यूजुअली डन और हैपन इन लाइफ, इट इज़ डिस्टरप्टेड बाय वेरियस कंट्रीब्यूटर्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉर्मल फंक्शनिंग ये होती है कि मामूल के हालात, ज़िंदगी जो है वो मामूल के हालात के मुताबिक जो चीज़ें जैसे चल रही हो वैसे ही चलें, लेकिन ये कब डिस्टर्ब होती है या तबाह हो जाती है, जब नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो पैदा होती है। Students, there are some difficult words, their pronunciations, meanings and synonyms related to the paragraph number 1 and 2. First one is disrupts. Disrupts को बेटा ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, इसका मीनिंग होता है ख़राब करना, मीन डैमेज। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को आलूदगी इसका मतलब है, और कंटेमिनेशन इसको हम सिनोनिम के तौर पर लेंगे। डिस्कम्फर्ट बेचैनी मीन्स इरिटेशन। नॉइजेंस नागवार चीज़, अनोइंस। स्ट्रेस तनाव मीन्स टेंशन। एक्सेप्टेबल काबिल कबूल, अलाउेबल। मैक्सिम कॉल या कहावत, इसको हम प्रोवर्ब कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देयर आर सम डिफिकल्ट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस रिलेटेड टू द पैराग्राफ नंबर 1 and 2. First one is disrupts. Disrupts, the war seemed likely to disrupt the strait. Pollution, the fish are dying of pollution. Discomfort, the patient is still experiencing discomfort. बेटा यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मैंने सेंटेंसेस बना दिए हैं, बाकी जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको आपने खुद से अपने होमवर्क के तौर पर आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स के स्पेलिंग्स को याद करना है, सिनोनिम्स को याद करना है, ताकि आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो सके। नाउ वी मूव ऑन टू द पैराग्राफ नंबर 3. The major causes of noise pollution in Pakistan are traffic on the roads, construction sites, careless use of electronic appliances, and loud speech pattern. Noise coming from different modes of transport, vehicles, airplanes, trains, ships, proves to be highly stressful for the human communities. पाकिस्तान में सड़कों पर आमदोरफ्त, तामीर की जगह का लापरवाही से इस्तेमाल और बुलंद आवाज़ में तकरीर के असलूब जो हैं वो शोर की आलूदगी की बड़ी वजूहात है। मुख्तलिफ ज़राए आमदोरफ्त जैसे कि गाड़ियाँ, हवाई जहाज़, रेलगाड़ियाँ और बहरी जहाज़ से आता हुआ शोर इंसानी समाजों के लिए इंतहाई पुरतनाव साबित होता है। With the population growth and development in urban areas, the vehicular traffic has also multiplied. This has given rise to noise pollution, largely in the form of unwarranted honking by drivers. आबादी में इजाफे और शहरी इलाकों की तरक्की की वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त भी दुगनी हो गई है। इस बात ने ज़बरदस्त शोर की आलूदगी को पैदा किया है, जो बुनियादी तौर पर ड्राइवरों की तरफ से नामाकूल हॉर्न की इस्तेमाल की शक्ल में मौजूद है।
Also, the mushroom growth of the residential colonies near airports and railway stations has exposed residents to permanent and unavoidable source of noise pollution. हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों के करीब तेज़ी से बढ़ती हुई रहायशी आबादियों ने भी रहायशियों को मुस्तकिल और नागुज़िर शोर की आलूदगी में झोंक दिया है. Now we move on to the difficult words, pronunciations, meanings and synonyms related to the paragraph number 3. First one is construction. Construction को बेटा हम ऐसे प्रोनाउंस करेंगे. ये इसका मीनिंग है तामीर करना और बिल्डिंग इसका सिनोनिम आएगा. व्हीकल गाड़ियाँ मीन्स ऑटोमोबाइल. स्ट्रेसफुल परेशान कुन डिफ़िकल्ट. हाईली बहुत ज़्यादा. एक्सट्रीमली प्रूव साबित करना शो करना. हॉन्किंग हॉर्न बजाना. लाउड कार हॉर्न. रैपिड तेज़ मीन्स फास्ट. एक्सपोज खोल देना जाहिर कर देना रिवील कर देना. ठीक है स्टूडेंट्स, देयर आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस रिलेटेड टू द पैराग्राफ नंबर 3. First one is construction. A dam is under construction. Vehicle, car, buses and trucks are all vehicles. Stressful, she had a stressful job. बेटा यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मैंने सेंटेंसेस बना दिए हैं. बाकी जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी आपने घर में खुद से प्रैक्टिस करनी है. इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आपने याद करना है, इनको सिनोनिम्स को याद करना है और इनके स्पेलिंग्स को भी याद करना है. नाउ वी मूव ऑन टू द पैराग्राफ नंबर 4. An other source of noise pollution in urban area is the work of construction sites. The construction work in urban areas is usually slow and time consuming. The use of transport and equipment at construction sites, its grilling and piercing sound is a big source of noise pollution. शहरी इलाकों में शोर की आलूदगी का एक दूसरा बड़ा ज़रिया तामीर की जगहों पर काम है. शहरी इलाकों में तामीराती काम आम तौर पर सुस्त और दिक्कत तलब होता है या वक्त तलब होता है. ट्रांसपोर्ट और साजो सामान जो तामीराती जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है उसके सुराख करने और छेदने की आवाज़ें शोर की आलूदगी का बड़ा ज़रिया हैं. It not only disturbs the general public but also affects the construction workers by causing mental fatigue. ये ना सिर्फ आम आवाम को परेशान करता है बल्कि जहनी थकावट का बाइस बनकर तामीर करने वाले मज़दूरों को भी मुतासिर करता है. Students, there are some difficult words, pronunciations, meanings and synonyms related to the paragraph number 4. First one is usually. यूजुअली को बेटा हम ऐसे प्रोनाउंस करेंगे और इसका मीनिंग है आम तौर पर मीन्स सिनोनिम है नॉर्मली. इक्विपमेंट साजो सामान मीन्स अपरेटस. ड्रिलिंग सुराख करना मेकिंग होल. पार्सिंग भी छेदना होता है, सुराख करना मीन्स पेंट्रेटिंग. फैटीग थकावट. टायर्डनेस. टाइम कंज्यूमिंग वक्त तलब. ठीक है टेकिंग अ लॉट टाइम, जिस काम में या जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा हो वो टाइम कंज्यूमिंग. ग्रिलिंग हिफाजती जंगला बनाना. प्रोटेक्टिव ग्रिल कहते हैं हम इसको. डिस्टर्ब्स परेशान होना. डिसऑर्डर. स्टूडेंट्स, देयर आर सम डिफिकल्ट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस रिलेटेड टू द पैराग्राफ नंबर 4. फर्स्ट वन इज यूजुअली. सो द सेंटेंस इज वी यूजुअली गो टू द रेस्टोरेंट ऑन संडे. इक्विपमेंट आई डोंट हैव द राइट इक्विपमेंट. ड्रिलिंग दे आर ड्रिलिंग अ न्यू टनल. बेटा यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मैंने सेंटेंसेस बना दिए हैं. बाकी जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको आपने खुद से घर पे प्रैक्टिस करना है. नाउ वी मूव ऑन टू द पैराग्राफ नंबर 5. यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ एन अदर कॉज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल अनमॉनिटर्ड यूज़ ऑफ मोबाइल फोन्स, electricity generators, music systems and TV all become irritants from time to time. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शोर की आलूदगी का एक दूसरा ज़रिया है. मिसाल के तौर पर मोबाइल फ़ोन्स का आज़ादाना इस्तेमाल, बिजली के जनरेटर, मौसीकी के सिस्टम और टीवी सब वक्तन फ़वक्तन बेजार करने वाले बन जाते हैं. People usually do not switch off their mobiles or put them on silent modes when they enter offices, hospitals, schools and colleges. They also use electricity generators excessively in residential areas and put other residents ill
एट ईज़। जब लोग दफातर, हस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों में दाखिल होते हैं तो वो आम तौर पर अपने मोबाइल बंद नहीं करते या उन्हें साइलेंट पर नहीं लगाते। वो रहायशी इलाकों में बिजली के जनरेटर भी बकसरत इस्तेमाल करते हैं और दीगर मकीनों को भी परेशान करते हैं। Moreover, listening to loud music or TV on a loud volume is another source of noise pollution. For this, people need to develop some civic responsibility so that others may not be in trouble because of their careless action. मज़ीद ये कि ऊंची मौसीकी सुनना या ऊंची आवाज़ में टीवी सुनना शोर की आलूदगी का एक दूसरा बड़ा ज़रिया है। इसके लिए लोगों को कुछ शहरी जिम्मेदारी पैदा करने की ज़रूरत है ताकि दूसरे उनकी लापरवाह हरकत की वजह से मुश्किल में ना पड़ें। Students, there is a question in a box. How does technology increase noise pollution? What are technology based irritants? So the answer is technology increases noise pollution when it is misused. Mobile phone, electricity, generator, music systems and TV all become irritants when we use them irresponsibly. पूछा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है ज़्यादा बढ़ रहा है वो कैसे नॉइज़ पोल्यूशन में इजाफा कर रहा है। तो ये इस तरह कि जब हम उसको मिस यूज़ करेंगे, उसका गैर लापरवाही से इस्तेमाल करेंगे तो ये शोर की आलूदगी का बायस बन रहा है। फिर उन्होंने पूछा व्हाट आर टेक्नोलॉजी बेस्ड इरिटेंट्स, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कि शोर की आलूदगी का बायस बन रही है। तो मोबाइल फ़ोन है, इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटर है, म्यूज़िक सिस्टम, टीवी, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हम इनको इररिस्पॉन्सिबली यूज़ करें तो ये नॉइज़ पोल्यूशन का बायस बनती है। Students, there are some difficult words, pronunciation, meanings and synonym related to the paragraph number 5. टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है बेटा मशीनी चीज़ें, मीन्स मशीन्स। अनमॉनिटर्ड, नामुनासिब, नॉट मॉनिटर्ड। इरिटेंट, बेजार करने वाले, बोदर या फिर बोर। एक्सेसिवली, बेजा अंदाज में, एक्सट्रीमली। लाउड, ऊंचा, नॉइजी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, मैनेजमेंट। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पावर। ठीक है बेटा, यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनके मैंने सेंटेंसेस बनाए, आप उनको देख लें। टेक्नोलॉजी, द कंपनी इन्वेस्टेड हैवली इन न्यू टेक्नोलॉजी। अनमॉनिटर्ड, द वे ही स्पोक वॉज सो अनमॉनिटर्ड। इरिटेंट, ही सैड द इशू वॉज नॉट अ मेजर इरिटेंट। बेटा यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के सेंटेंसेस बना दिए गए हैं, बाकी जितने भी वर्ड्स रह गए हैं आपने उनको घर पे प्रैक्टिस करना है एज अ होमवर्क। ठीक है, और बाकी जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इन सब के आपने सिनोनिम्स को याद करना है, मीनिंग्स को याद करना है और इनके स्पेलिंग्स याद करने हैं ताकि आपको ट्रांसलेशन में आसानी हो और आपको समझ आ सके बेहतर तौर पर। नाउ वी मूव ऑन टू द पैराग्राफ नंबर 6. Noise pollution causes not only environmental damage but it also has a negative impact on human health. It can cause aggression, hypertension, high stress level, hearing loss, restlessness, depression and insomnia. ठीक है, शोर की आलूदगी ना सिर्फ माहौलियाती नुकसान का बायस बनती है बल्कि ये इंसानी सेहत पर मनफी असरात भी डालती है। ये जारहियत, इजाफी फ़िशार खून, बुलंद तनाव की सतह, समात का खोना, बेचैनी, बेकैफ़ी और बेख्वाबी का मौजब बनती है। Insomnia can further lead to anxiety, bad temper and emotional stress. In addition, noise pollution can seriously affect the learners. It gives them unnecessary mental and physical tension. बेख्वाबी मज़ीद इज़्तिराब और बदमिजाजी और जज्बाती तनाव का सबब बनती है। अलावा ज़ी शोर की आलूदगी तालिब इल्मों को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर सकती है। ये बात उन्हें गैर ज़रूरी ज़हनी और जिस्मानी तनाव का शिकार करती है। Student, there is a question in a box. What are the harmful effects of noise pollution on human health? इंसानी सेहत के ऊपर जो noise pollution है, शोर की आलूदगी, उसके क्या बुरे असरात होते हैं? So the answer is it is causing aggression, hypertension, high stress level, hearing loss, restlessness, depression और insomnia. ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि इंसानी सेहत के ऊपर असरअंदाज होती हैं, किसकी वजह से? नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द डिफ़िकल्ट वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशंस, मीनिंग्स एंड सिनोनिम रिलेटेड टू द पैराग्राफ नंबर 6. डैमेज, डैमेज का मतलब होता है बेटा नुकसान पहुंचाना, हार्म। इम्पैक्ट, असर, इफ़ेक्ट। एंग्जाइटी, इज़्तिराब या बेचैनी, इसको हम वरी भी कह सकते हैं। टेम्पर, मिजाज, नेचर। डिस्ट्रैक्ट, तवज्जो बदलना, डाइवर्ट, रास्ते से हट जाना। टेंशन, तनाव,
pull, emotional, जज्बाती, touching. Students, there are some difficult words and sentences related to the paragraph number 6. फर्स्ट वन इज़ डैमेज. डैमेज का मतलब होता है बेटा सेंटेंस बनाए, आई पेड फॉर डैमेज. इम्पैक्ट, दिस ड्रामा हैज़ बैड इम्पैक्ट ऑन यंगस्टर्स. बेटा यहाँ पर जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आपने उनकी घर पे बाकी प्रैक्टिस करनी है, ख़ुद से सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के वोकेबलरी को याद करना है, इनके सिनोनिम्स को याद करना है, इनके आपने स्पेलिंग्स को याद करना है ताकि आपको ट्रांसलेशन करने में आसानी हो. Now we move on to the paragraph number 7. In Pakistan, there is a dire need to bring down the noise pollution coming from different sources. The government must gear up and utilize various means to control unwarranted noise pollution. पाकिस्तान में मुख्तलिफ ज़राए शोर की सतह को कम करने की अशद ज़रूरत है. हुकूमत को नामुनासिब शोर की सतह पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ ज़राए बरोकार लाना होंगे और उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करना होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, द पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी रिकमेंड्स अबाउट 55 डेसिबल ऑफ नॉइज़ लेवल इन रेजिडेंशियल कॉलोनी एंड 75 डेसिबल इन कमर्शियल एरियाज़. These figures must be strictly enforced by the government. मिसाल के तौर पर पंजाब की माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की एजेंसी रहायशी आबादियों में शोर की सतह तकरीबन 55 डेसिबल तजवीज़ करती है और तिजारती इलाकों में 75 डेसिबल तजवीज़ करती है. हुकूमत को इन आदाद का सख्ती से इत्तलाक़ करना होगा. फर्दरमोर, द गवर्नमेंट शुड इंश्योर स्मूथ ट्रैफिक फ्लो, ब्लॉक नॉइज़ emitting vehicles from roads, use noise barrier where necessary and expedite construction work to minimize noise pollution. मज़ीद ये कि हुकूमत को ट्रैफिक की हमवार रवानी को यकीनी बनाना चाहिए. सड़कों पर शोर पैदा करने वाली गाड़ियों को बंद कर देना चाहिए. जहां ज़रूरी हो शोर की रुकावटें इस्तेमाल करनी चाहिए और शोर की आलूदगी को कम करने के लिए तामीराती काम को तेज़ करना चाहिए. Also, the residential societies should come forward to frame and enforce rules in their areas to check unnecessary noise producing agents. रहायशी इलाकों की तंजीमों को भी आगे बढ़ना चाहिए और गैर ज़रूरी शोर पैदा करने वाले अनासर को रोकने के लिए उन्हें अपने इलाकों में कवानीन बनाने चाहिए और उन्हें नाफिज करना चाहिए. Offices, hospitals and academic institutions should strictly prohibit the use of mobile phone for better the noise management. Moreover, people should be discouraged to speak loudly in these areas. दफातर, हस्पतालों और तालीमी इदारों को शोर के बेहतर बंदोबस्त के लिए अपने कैंपस मोबाइल फ़ोनों के इस्तेमाल पर सख्ती से पाबंदी लगा देनी चाहिए. मज़ीद ये कि लोगों की अपने इलाकों में बुलंद आवाज़ में बोलने की भी हौसला शिकनी करनी चाहिए. There are some difficult words, pronunciation, meaning and synonym related to the paragraph number 7. Utilize. Utilize बेटा होता है इस्तिफ़ादा उठाना. Make use of. Enforce नाफिज करना, impose करना. Expedite तेज़ करना, स्पीड अप करना. Prohibit ममनुआ करार देना, मना कर देना या बैन कर देना. Discourage हौसला शिकनी करना. Demoralize फिगर, आदाद, numbers. Recommend तजवीज़ करना, suggest करना. There are some difficult words and sentences related to the paragraph number 7. First one is utilize. She will only utilize it for common goods. Enforce. In some countries, police enforce the laws. Expedite. Please expedite the delivery of the packages. Now we move on to the paragraph number 8. Noise pollution is a serious issue and needs attention at local and state level. People must develop awareness about the dangerous impact of noise on human health. It is therefore a need to acquire more civic sense and responsible attitude to avoid the unnecessary use of noise pollution irritants in the environment. Only then our country would be a much quieter and peaceful place to live in. शोर की आलूदगी एक संजीदा मसला है और इसे मकामी और रियासती सतह पर मज़ीद तवज्जो की ज़रूरत है. लोगों को इंसानी सेहत पर शोर के ख़तरनाक असर के बारे में मज़ीद शऊर पैदा करना चाहिए. लिहाजा माहौल में इस बेजार करने वाले गैर ज़रूरी इस्तेमाल से बचने के लिए मज़ीद शहरी एहसास और ज़िम्मेदाराना रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत है. सिर्फ तब ही हमारा मुल्क रहने के लिए कहीं ज़्यादा पुरसकून और कहीं ज़्यादा खूबसूरत जगह बन जाएगा. There is a question in a box. How can we cope with the serious issue of noise pollution? हम इस noise pollution का जो इतना
सीरियस मसला है, इससे कैसे निपट सकते हैं? सो द आंसर इज फॉर दिस वी शुड बी अवेयर ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, वी शुड हैव अ रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड एंड मेक कलेक्टिव एफर्ट्स टू कॉप विद दिस इशू। हमें इसके असरात का इल्म होना चाहिए कि इसके असरात कितने नुकसानदेह हैं और हमें इससे निपटने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड अपनाने की ज़रूरत है ताकि हम इससे बच सकें। नाउ देयर आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग्स एंड सिनोनिम रिलेटेड टू द पैराग्राफ नंबर 8। अटेंशन, अटेंशन का मतलब होता है बेटा तवज्जो, नोटिस, अवेयरनेस, शऊर, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, आंसरेबल, एटीट्यूड, रवैया, व्यू पॉइंट, अवॉइड, बचना, कीप अवे, क्वाइटर, खामोशतर, साइलेंट, पीसफुल, पुरसकून मीन्स काम। बेटा आई होप आपको इस चैप्टर की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। यहाँ पर आपने जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको अच्छी तरह से याद करना है, उनके सिनोनिम्स को याद करना है, आपने प्रैक्टिस करनी है सेंटेंस फॉर्मेशन की ताकि आपकी वोकेबलरी इन्हांस हो, आपकी राइटिंग स्किल्स जो हैं वो बेहतर हो सके। बच्चों आपके लिए हर मजमून की वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब हैं। आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आएँ तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रहें। शुक्रिया।